and honestly, I really, really loved writing the dreams because it's like I was visualizing through all the moments and stuff, like how will I be doing the things, how will the moments be. So yeah, it was really amazing. Wow, And thank I you. didn't want to stop. I just I kept on writing my dreams for quite a long time. Thank you. Thank you for sharing. Thank you so much for yesterday's session. It was amazing. Thank you. Yasha, you're on mute. The people who did not attend the session yesterday, and if you want to know about the assignment was that you had to write your dreams and you had to watch the secret movie in any of your preferred languages. And you all And had to write 10 dreams. I think everyone attended yesterday's session, whoever is present right now. we'll begin the session in few minutes. Yeah, if you want to share, you can share. Hi, I'm Adita here. Hi. Good morning. Yeah, like, good morning. Asha said, like, firstly, you should write the dream at 4 and stuff like that. So I did that. I wrote my dreams at 4. And, like, I felt really, really nice when I was doing it. And I have been also practicing visualization and stuff like that since really long. So it was amazing, and especially like I feel when you're writing stuff more than like just saying it, like the intensity of feeling it is way more. So yeah, like it was really nice. Thank you, Udita. Thank you for Uh, your beautiful sharing. Thank you. Did you face any problem while writing any dream with the language? No, not really. Okay. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. All the best. Thank you. Thank Thank you. you. So white and powerful, huh, today? Good, good.
we'll begin at 8 or now? Let's wait for everyone. We'll begin at 8. Yes. So for the people who have just joined in, if you want to talk about how you felt after doing assignments yesterday, you can tell us how you felt after writing your dreams and if you watched the secret movie. Thank you. And if you all faced any problem with the languages while writing the dream. Morning to everybody. And yesterday it was a morning. wonderful morning, session. I'm grateful to you all and thankful to all of you for hosting such a wonderful session. And मैंने जो लिखे हैं wishes, तो मुझे थोड़ा clear नहीं हो रहा था how I should explain and write the reason. तो अभी अगर अपने free हैं तो I can ask, और नहीं तो बाद में भी पूछ सकती हूँ मैं. Okay, so we'll take the questions at the end. I'll start the session now. Okay. Okay. Thank you. Thank you all of you. All the best. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Thank you for joining. I'm truly grateful. The beginning of transformation is awareness, and with awareness, we make choices. As we make choices, magical results start showing up in our life. This magical book is a powerful tool that will help us elevate our awareness. So all three of us, Sakshi, Aryan, and I, thank you for your presence as we embark on this journey together and to give us the privilege to serve you for the next 28 days. So we'll start the session with a beautiful prayer today. This beautiful morning, we pray to our divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. And the day that unfolds transforms into a magical day for us and those around us. Thank you, thank you, thank you. We'll do this prayer every day before we start the session, and I'll share the prayer on the group. So let's begin the session. So today we are going to read a very beautiful chapter. I want all of you to use your three senses. आप सुनिए, देखिए और बोलिए. The eyes to see and the ears to hear. Please be vigilant and aware. And be on mute and read the chapter on your own as we are going along with the chapter. Thank you. So I want someone to nominate themselves and please start the reading for today. I'll read. Yes, what's your name? Vatsal. Yes, please start the. Count your blessings. Yes. When I started counting my blessings, my whole life turned around. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you're doing.
But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. Exactly. So when you start counting your blessings, your life will change single-handedly. So I'll tell you something. Before I started magic, I didn't realize the small things which I was not grateful for, which was unknown to me. But now, whenever I get up in the morning, I make my bed and I say thank you for my bed. Thank you for the peaceful sleep I got. When I go to my bathroom, I say thank you for the bathroom. बहुत जन के पास bathroom भी नहीं होते घर पे. So thanks, I say thank you for my bathroom. The more grateful you are for the things in your life, it will multiply because gratitude is a great multiplier. Please continue. When you are grateful for the things you have daily, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work and suddenly appear. Yes. So आप लोग में से बहुत जन अभी ग्रेटफुल नहीं होंगे अपने मनी के लिए. मैं भी नहीं थी बिफोर आई स्टार्टेड. एंड मेरे पापा जब मेरे को 5 रुपए 10 रुपए देते थे and जब मैं पेमेंट करती थी आई वाज लाइक 5 रुपए 10 रुपए ही तो है, मतलब क्या बड़ा बात है. बट नाउ आई इवन ब्लेस द 10 rupee note in my hand, that how it can magically change someone else's life. So however little you have, be grateful. If you're grateful for a relationship, even if it's not perfect. So I'll talk about my relationship in the context of friends abhi mere life mein. So all of many of us have broken relationship with our friends, but if we are grateful for the good things or the good qualities we see in those friends, it will automatically become better. When we talk about a job, इस टाइम पे आप सोचिए कि कितने जन अभी अनएम्प्लॉयड है एंड दे गॉट फायर्ड. एटलीस्ट आपके पास अभी जॉब है, आप अपने फैमिली के लिए अर्न कर सकते हैं. So please be grateful, even if you don't like the job, because if you are grateful for the job you don't like, God will give you more opportunities. Even if it's small, it will give you. Please continue. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have Yes. tried. So 1 second. So काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स. आप देखते होंगे बहुत से घर में जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं यार आज तो इकोनॉमी अच्छी नहीं है. मतलब क्या कर रहे हैं मोदी जी. पॉलिटिशियंस आर सो करप्ट. मुझे पता है कि अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आपके बिजनेस में थोड़ा सा आएगा प्रॉब्लम, बट आप उसके लिए तो ग्रेटफुल हो सकते हैं जो पॉलिटिशियंस अच्छा काम कर रहे हैं, जो मोदी जी हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी, शी हैज really improved the infrastructure of Kolkata, but we all overlook that. उसने कितना कितना अच्छा चीज बिल्ड कर दिया है, रोड्स को ठीक कर दिया है. At least we can be grateful for that. Because if we are counting negative things, we are just canceling our blessings. We are just canceling out our blessings. Please continue. I have tried both, counting my blessings and counting negative things, and I can You assure that. you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. First thing in the morning or as One early. second. 1 second. So, even I have tried both, counting my blessings and counting negative things.
Before I started magic, मैं भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव बोलती थी, and मुझे तब नहीं रियलाइज होता था कि मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे पास आएगा, because wherever attention goes, energy flows. But now I count my blessings. These lines are very important. These are very precious lines. तो मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद all of you reread this lines. What are these lines trying to tell us? That we have so many infinite blessings in our life. हम जानते भी नहीं है कि इतना blessings हम लोग को मिला है. Abundance of water or free oxygen. But if we are not counting our blessings and we are talking negative, we are canceling out even one blessing which we'll get from God. So please read these lines again after the session and try to understand. बहुत riddles है ये chapter में. Please continue. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yes. So I want all of you to do this first thing in the morning. So from tomorrow, before you come for this session, please count your blessings. Because आप जब morning में लिखते हैं, आपके vibrations अलग होते हैं, आपका positivity बहुत ज़्यादा होता है, और घर में शांति भी होती है, तो you can sit quietly and think about all the blessings you have got. And यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, type it on a computer. Please ignore that. I want all of you to write it with your hand. Because when you write it with your hand, your feelings are another level, and feelings really matter. Love and gratitude really matter when you're counting your blessings. And when you write, you increase 33% chances of your feelings manifesting and writing your dreams and blessings. So please write it with your hand. Please continue. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for. It. Yes. So yesterday we read about Albert Einstein, and हम लोग ने देखा कि वो Albert Einstein was one of the most brilliant minds. He said 100 times thank you a day. He said thank you for all the laborers who helped him, for all the people who helped him in doing his discoveries and inventions. But one of the most important thing he did was saying why he was thankful for them. So the why is very important. अब हम पढ़ेंगे कि why important क्यों है. हम लोग को why लिखना पड़ेगा. Please continue. Here are some ideas for writing a list. I am truly blessed to have what, because, like, why. Yes, so I'm truly blessed to have all the participants who have joined from today, because they are giving me an opportunity to teach them, to spread the magic to them. Please continue. I am so happy and grateful for what, because, why. I'm so happy and grateful for the abundance of water, because water hydrates our body. We get so much of energy. Please continue. I am truly grateful for what, because, why. I'm truly grateful for the abundance of free air which we have got, because air is so important. We breathe to the free air which God has provided us. Please continue. With all my heart, thank you for What? what, because, why. With all my heart, thank you for my parents, for my beautiful parents, because I am what I am today because of them. Please continue. After you finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the when you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Yes, so the 3 times of saying thank you, thank you, thank you is very powerful. It indicates
power, and completion as stated in the Bible. So please say thank you thrice. Please continue. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, like life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simple, using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. Yes, 1 minute. तो अगर आप कोई गॉड में बिलीव करते हैं या स्पिरिट में, तो यू कैन फील मोर ग्रैटिट्यूड अबाउट द गॉड और यूनिवर्स यू फील. बट अगर आप नहीं करते, सो यू कैन चूज सन एज द सिंबल, बिकॉज एंशियंट टाइम्स में एज सच इतने गॉड्स का था नहीं, तो सब सन को ही थैंक यू बोलते थे. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, when you direct gratitude towards something or someone, चाहे कुछ भी हो आपका रिलेशनशिप की towards your doing or towards your dreams, you will feel it even more because the power and because you have faith in that. So your gratitude will be even more powerful. Please continue. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might Yes, think it, so my request, 1 second. So my request to all of you is that for the next 27 days, please add new blessings, because there's so many blessings. तो आप जब लिखने लगेंगे आपको लगेगा हाँ ये भी है, ये भी है. So please write new blessings every day. Please you, continue. you might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful You have for. to. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes, there's so much to give thanks for. And now the next paragraph, which we are going to read, you can refer to this to write your blessings. Please continue. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, the blue sky, the rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. Yes. So one of the most important things is trees, the free air which we have got, and all of us have taken it for granted. I'll give you an example. So abhi is pandemic mein, I was reading the newspaper and I saw that there was this man. He had been admitted in the hospital because of his breathing issues. So there was an cylinder put for him so that he can breathe. So at the end of 1 week, the doctor handed him over the bill, and when he saw the bill, he started crying. So the doctor was like, "अगर आप अभी नहीं देना चाहते इतना बड़ा amount तो ठीक है, आप बाद में दे दीजिएगा." He was like, "नहीं, amount की बात नहीं है. I have abundance of wealth, abundance of money." But the fact that he was 70 years old, but the fact that I'd never been thankful for the free air I got in these 70 years. And now I'm paying such a big amount to get oxygen, जो गॉड ने हम लोग को फ्री में दिया था. तो आप सब सोचिए कि हम लोग कितना, आप भी और मैं भी, मैं कोई गुरु नहीं बन गई हूँ ग्रैटिट्यूड की, मैंने भी बस 2 महीना पहले ही स्टार्ट किया था. So even I took air for granted, but now I always say thank you God for the free air which you have provided. Wow. Please continue. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. Yes, so the eyes that see, be grateful that you can see the screen,
Be grateful you can see the beautiful nature. Your ears that hear. You can hear my voice. You can hear the bird chirping. Your mouth that taste. अगर taste ही नहीं होता तो खाने का स्वाद ही हम लोग को कभी नहीं आता. And the nose that smells. Please continue. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give Yes, thanks. one second. The legs you walk on. आप सोचिए ना, अगर आपके legs नहीं होते तो क्या आप walk कर पाते? क्या आप trekking कर पाते? क्या आप running कर पाते? नहीं ना, तो legs कितनी important है. The hands are so important. अगर हमारे पास hands नहीं होता तो हम लोग दूसरे लोग को ही बोलते रहते, अरे please ये मेरा काम कर दो, please मेरा काम कर दो. But we are so lucky. And the voice. अगर अपने loved ones को communicate ही नहीं कर पाते, express ही नहीं कर पाते, तो कितना अजीब होता. God has given us such good senses, all the 5 senses. We should be truly grateful for them. Please continue. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all your organs that maintain your body so that you can live. Yes. And So the immune system. इस टाइम पे सब लोग कितने विजिलेंट हो गए अपने इम्यून सिस्टम के बारे में. अरे भाई और कुछ नहीं तो इम्यून सिस्टम तो अच्छा होना चाहिए ऐसे टाइम पे. बट इससे पहले कभी भी हम लोग अपने इम्यून सिस्टम के बारे में सोचे थे? नहीं. एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचा था. But now I'm truly grateful for the strong immune system that God has given me. Please continue. and what about the magnificent Magnificence. of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Yes. तो ब्रेन तो हमारा ही है. कोई टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता. All of us use 2% of our brain. And it's so important. आगे chapters में we'll tell you the importance of conscious and the subconscious mind. Please continue. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. Yes, so these are the subjects you can look upon while counting your blessings. आप अपने health के लिए grateful हो सकते हैं कि अभी आपका health कितना अच्छा है, अपने success के लिए, for the abundance of money you have, the good relationships in your life, whatever you're passionate about. So you can refer to this. Please continue. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel really some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Magically mandatory. Yes. So you should feel significantly better and happier. तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप counting your blessings कर रहे हैं, 1 week, 2 weeks pass by हो गए, you'll see that you'll feel very lighter, you'll feel better, you'll thank God कि God मैंने ये कभी भी पहले नहीं किया था, and today I'm so grateful. But remember, one of the very important thing is that never count your blessings when you're irritated or when you're angry, because those are the vibrations that you're giving in your blessings. तो अपना mood ठीक करके फिर बैठिएगा. एंड अगर आप मॉर्निंग में करेंगे तो ऐसे भी आपका मूड बेटर ही रहेगा, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव रियली हाई वाइब्रेशंस दैट टाइम. एंड यू विल, सो समटाइम्स आप देखेंगे कि थोड़ा सा कम हो रहा है आपके लाइफ में मैजिक, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाएगा. सो यू हैव टू बी पेशेंट. Even we are still in this motion, and even gradually even our life is changing. So yes, and you will see your blessings magically multiply. So what a beautiful chapter. Thank you. Oh, sorry. Magic practice. Yeah, please read. Magic practice number 1. Magic practice number 1: count your blessings.
First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Number 2, write why you are grateful for each blessing. Third, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Fourth, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Yes. So say thank you thrice. As I told you, there's a science behind it about perfection and completion as stated in the Bible. एक बार मत बोलिएगा, 2 बार नहीं, but 3 बार. And यहाँ पे लिखा हुआ है कि for the next 27 days, but I want all of you to continue this for the rest of your life. Please, it's a very powerful thing to do. And do it first thing in the morning before you come for the session. Please read the magic reminder. Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. यस तो कल का जो असाइनमेंट होगा आप लोग सबको एक रॉक ढूंढना है, एक छोटा सा रॉक जो आपके हाथ में फिट आ जाए, जिसमें एजेस ना हो, नॉट अ पेबल और एनीथिंग एल्स. आई जस्ट वांट अ रॉक एंड जो कंफर्टेबल हो, जो परेशानी ना दे. तो आप बस एक छोटा सा रॉक ढूंढ के रखेगा एंड देन टुमारोज चैप्टर विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. So thank you Vatsal for reading the chapter so beautifully. Thank you. Welcome. And now Sakshi will take over the next chapter which we'll read in Hindi. तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि हम लोग इंग्लिश एंड हिंदी में क्यों पढ़ रहे हैं. So let me tell you, when you read the chapter in English and Hindi, you interpret things differently. आप हो सकते हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो और आप जब हिंदी पढ़ते तो आप बोलते हैं अच्छा हाँ ये भी तो था, मैंने इंग्लिश में समझा नहीं था. तो इसीलिए we'll read the chapter in both the languages every day. Thank you, Shasti. Thank you so much for explaining so beautifully. And thank you, Vatsal, for reading in English. Also, after I make you all read the chapter in Hindi, Aryan Raj is going to explain something very, very important and beautiful. It is known as the feelings chart. So please stay till the end. Now, can someone please nominate his or herself to read in Hindi? Anyone? You don't need to put your video camera on. I'll read. Okay, thank you. Please start. अपनी नियामतें गिनने. जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. आपने लोगों को कहते सुना. एक मिनट. तो आप ये लाइन देखिए, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. आप एक चीज सोचिए, मतलब आप जब धीरे धीरे ये टास्क करना स्टार्ट करेंगे ना, आज कल परसों और अपनी पूरी लाइफ, आपको इस लाइन का महत्व समझ में आएगा. बिकॉज यू नो ऑल ऑफ us, when यशस्वी, आर्यन, all the people who've done this magic session before, उनको पता है कि कितना इम्पोर्टेंस है इस लाइन में. तो प्लीज इसको बहुत 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 महत्वपूर्ण समझिए. प्लीज कंटिन्यू. आपने लोगों को कहते सुना होगा कि आप अपनी नियामतें गिनें. जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं. लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा. जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे. यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है. यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे. यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे. ममता एक मिनट प्लीज रुकिएगा. आप एक चीज यहाँ पे जो हमें ऑथर बताने का कोशिश करिए, लेखिका, कि जीवन में कैसा भी ब्लेसिंग हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो, आप जब धन्य हो रहे हैं आपके लाइफ में, आप चीज गार्ड बांध लीजिए. हम लोग कितने बार पढ़े, जो धन्य होता है
उनको और मिलता है, जो नहीं होता है उससे सब कुछ ले लिया जाता है। तो छोटी चीज के लिए धन्य हो, बड़ी चीज के लिए धन्य हो, आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक चीज सोचिए, जब ये बोल रहे 10 रुपया भी, तब एक 10 रुपया में एक चिप्स का पैकेट आता है। हम लोग के लिए वो चिप्स का पैकेट कुछ नहीं है, बट एक गरीब के बारे में सोचिए, उसके लिए एक खाना, एक मील है वो। तो आप सोचिए कि आपके लिए तो चुटकी बजा के आपके पास वो 10 रुपया है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अब जब अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, आप धन्य हो ये कि आपके पास नौकरी है। कितने लोग की नौकरी चली गई, आप धन्य हो आपको पैसा मिल रहा है रोज। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना नौकरी को अच्छा बोलेंगे, अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को, आप जितना सोचेंगे कि वाह, चाहे मेरे को 10,000 मिल रहा है एक महीना में, 10,000 रुपया मिल रहा है, वाह, वो आप धीरे धीरे देखेंगे वो 10,000 मल्टीप्लाई होके कब 20 हो जाए, 30 हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बी इट स्मॉल, बी इट बिग, प्लीज बी ग्रेटफुल। प्लीज कंटिन्यू। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियत नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। बनता, एक मिनट एक मिनट, वो अभी यहाँ पे लिखेगा, हम लोग को क्या बताने का कोशिश कर रही है कि हम जीवन में जितना नियामतें नहीं गिनते, हम नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी की ओर जाते हैं, और जितना गिनते हैं हम उतना ही पॉजिटिविटी के पास आते हैं। अब एक चीज सोचिए, हम लोग मतलब हम लोग कितने ग्रांटेड ले लिए लाइफ को। हम लोग के घर में मेड, सर्वेंट्स, ड्राइवर कोई भी आता है, सपोज हम लोग की मेड रोज खाना बनाती है, पानी से लेकर एंड तक आपको खाना परोसती है, बट दाल में नमक कम हो गया, अगर वो खाना लेट दे दी, अगर आपके मनपसंद खाना नहीं बना, द वे वी रिएक्ट, द वे वी टॉक, हम लोग 2 बार सोचते भी नहीं है बोलने के पहले कि हम लोग बोल क्या रहे हैं। मतलब अनाम, ये गलती आपकी नहीं है, मतलब 2.5 मंथ्स पहले मेरे मन का खाना नहीं बना बाय चांस, अगर 2 सब्जी बना उसमें से एक भी मुझे पसंद नहीं है, आई यूज टू गेट एजिटेटेड, आई यूज टू से कि आपको पता है इनको ये पसंद नहीं तो आप क्यों बनाए। मतलब मैं 2 बार सोचती भी नहीं थी कि वो गर्मी में खड़े होकर मेरे लिए खाना बना रही है, वो 2 सब्जी बनाई है, अगर दोनों ही नहीं पसंद है या एक भी बनाई है वो भी नहीं पसंद है, देखो खाना तो मिल रहा है मेरे पास, वो दीदी तो है जो मेरे लिए खाना बना रही है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, 100 में से 5 टाइम्स वो गलत खाना बनाए, आपके मन का नहीं बनाई होगा। आप एक परिवार में रहते, हर समय हर जन के हिसाब से तो काम नहीं हो सकता है ना, आपको भी एडजस्ट करना है। तो अगर वो 95 टाइम्स आपके मन अनुसार काम कर रही है, सही टाइम पे खाना दे रही है, तो आप वो सोचिए कि आपको 95 टाइम्स थैंकफुल होना ही है, और जब वो 5 टाइम्स भी गलती कर रही है, आपको तभी भी थैंकफुल होना है। प्लीज इस बात को गार्ड मान लीजिए। प्लीज कंटिन्यू। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर ये है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतें की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। मान्यता, एक मिनट, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतों को खो देने से बेहतर है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मतलब, और लेखिका क्या बोलने की कोशिश कर रही है, जब हम मुश्किल समय के बारे में सोचते हैं, उसको सोचने से बेटर है कि हम अपना टाइम किस में दे, पता है, जब हम ब्लेसिंग लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास अनगिनत चीज है जीवन में कृतज्ञ होने के लिए। एंड आप ये बात समझेंगे जब आप ये टास्क करना स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा कि साक्षी, यशस्वी, आर्यन या ये लेखिका क्यों ये बोल रही है। तो प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम है, दूध वाला नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं हुआ।
प्लीज गिव योर टाइम कि आप उस दूध वाला के लिए धन्य कैसे हो सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। और एक और चीज, आप जब ये लिखेंगे तो आप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, आईपैड, प्लीज जस्ट से अ नो टू ऑल दिस। आपको भगवान ने हाथ दिया है, उसके लिए धन्य होइए, उसको इस्तेमाल करिए। जब हम बचपन में कुछ पढ़ते थे, लिखते थे, या अभी भी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए भी जब मैं पढ़ूंगी, या स्कूल के लिए भी जब पढ़ रही हूँ, जब मैं कोई चीज को लिखती हूँ फिर उसको जोर जोर से बोलती हूँ, वो मेरे माथा में बहुत अच्छे से बैठता है। और आपको पता है ये सच है, ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। So there's a reason why I'm telling you to use your hands and write the 10 blessings. Please continue. जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश। एक मिनट। तो आप यहाँ पे हम लोग ने कल पढ़ा था एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट, अ ब्रिलियंट माइंड। उन्होंने दिन में 100 बार धन्यवाद किया। तो हम लोग तो कर ही सकते हैं, 100% सब लोग कर सकते हैं। मेरे को पता है आप लोग सब कर सकते हैं। और अब एक चीज ध्यान रखिए, जब आप लिख रहे हैं, वाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई कैसे लिखना है, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज कंटिन्यू। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। देखिए, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास धन है, क्योंकि मैं है। और मैं क्यों खुश नसीब हूँ? क्योंकि वो धन से मैं अनाज खरीद सकती हूँ, मैं अपने सर्वेंट्स को सैलरी पे कर सकती हूँ। देयर आर अनलिमिटेड रीजंस व्हाई यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर मनी। प्लीज कंटिन्यू। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। प्लीज कंटिन्यू। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ? मैं आप सब लोग के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप सब यहाँ आए। आप मुझे, यशस्वी और आर्यन तीनों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम लोग आपके लाइफ में मैजिक लाए, इसलिए मैं आपके लिए धन्य हूँ। क्यों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्यों लिखेंगे ना, आपके अंदर फीलिंग और बढ़ जाएगा कि मतलब मैं कृतज्ञ तो हूँ, क्यों? वाओ, दिस पर्सन, दिस थिंग इज सो अमेजिंग, आई हैव टू बी ग्रेटफुल, मोर ग्रेटफुल। प्लीज कंटिन्यू। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं अपनी दादी माँ, मतलब मेरी माँ को धन्यवाद देती हूँ कि वो हर मोड़ पर जीवन में मुझे करेक्ट करते आई है। मुझे मेरे अंदर जितने संस्कार दे सकती है उन्होंने दिया है। तो क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कंटिन्यू। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। एक सेकंड। तो आपको क्या करना है, जब आप नियामतें लिख रही है, 10 लिखना है। 10 बहुत इजी, आपको लग रहा होगा 10 कैसे, लेकिन इट्स वेरी इजी। जब आप लिख लेंगे उसके बाद आप हर नियामतों को जोर जोर से पढ़ना है। अलग रूम में शांति से बैठिएगा, जोर जोर से पढ़ना है और बोलना है, मैं सपोज मैंने जो बोला अपनी दादी माँ के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे हर मोड़ पर करेक्ट करती है या मुझे बताती है कि ये गलत है या सही है। उसके बाद बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये धन्यवाद 3 बार बोले, क्योंकि जैसे यशस्वी ने कहा, हम लोग का फीलिंग्स भर जाता है धीरे धीरे जब हम लोग धन्यवाद बोलते हैं। प्लीज कंटिन्यू। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजा जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से
अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। वनिता एक मिनट, तो आप एक चीज सोचिए, हमने आपको डे 1 में बताया, डे 0 में बताया कि आप जब कृतज्ञ होते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, आपका ड्रीम्स आपके पास आ रहे हैं, नेगेटिविटी दे रही है, ड्रीम्स दूर जा रहे हैं। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। मतलब मेरे को बोलने की इसके आगे जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, यू हैव टू बी ब्लेसिंग। Why? Because you want your dreams to come near you. You complain, dreams go away from you. आप ग्रेटिट्यूड देते, ड्रीम्स बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आएगा। और क्यों प्राचीन समय से ये सब होते आ रहा है? कोई रीजन है, कुछ तो है। तो प्लीज आप सब कुछ भूल जाइए और इसमें विश्वास करिए। प्लीज कंटिन्यू। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। तो यहाँ पे बोला गया है, अगले 27 दिन तक करना है। बट आप खुद, मेरे को बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप पूरा जीवन इस चीज को कैरी करेंगे। मतलब आप जब खुद करेंगे ना 27 डेज के लिए विदाउट फेल, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे जीवन इसको क्यों कैरी ऑन करते रहना है। तो प्लीज डू द असाइनमेंट एवरी सिंगल डे। प्लीज कंटिन्यू। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। एक मिनट, तो आप एक चीज सोचिए, इस 5 लाइन में लेखिका ने हमें कितना कुछ बता दिया जिसके लिए हम धन्य हो सकते हैं। बी इट हवा, बी इट फूल। फूल को देख के किसको खुशी नहीं मिलता है, कितना मिलता है। एटलीस्ट वो फूल आपको खुश कर रहे हैं। एक रोज, जब आपको कोई रोज देता है, ट्यूलिप देता है, कोई भी फूल देता है, आपको खुशी तो आई एम श्योर होता होगा। तो आप सोचिए, एक फूल आपको खुश कर सकता है, तो आप उसके लिए धन्य नहीं होंगे जीवन में? आप जब जाते हैं, किसी को पानी बहुत पसंद है, तो आप जब समुद्र में जाते हैं, पीपल फील सो रिफ्रेश्ड कि वाओ, मैं वाटर में हूँ, क्या फीलिंग आ रहा है। कोई मालदीव जा रहा है, कोई आइलैंड्स में जा रहे हैं, तो आपको खुशी मिलती है ना, तो आप पानी के लिए धन्य होंगे। पक्षी, फूल, पानी, पौधे, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो आप सोचिए कि ऑक्सीजन बिना तो हम जी नहीं पाएंगे ना। तो आप सोचिए कि आपको उसके लिए कृतज्ञ होना कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज कंटिन्यू। आप अपनी इंद्रियों के कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। वंदिता एक मिनट, एक मिनट, इससे याद आया, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा गला आज ठीक नहीं है, बट मैं स्टिल कृतज्ञ हूँ कि मैं एटलीस्ट मैं बोल पा रही हूँ आप लोग को। भले ही आवाज थोड़ा वियर्ड है, सोर थ्रोट है, बट मैं एटलीस्ट बोल पा रही हूँ। मैं उसके लिए कृतज्ञता हूँ, कृतज्ञ हूँ। और ये क्यों हो रहा है? ये बुक के कारण। प्लीज बात को समझिए। आप कुछ रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप, जब आपका गला ठीक भी नहीं है, तभी भी आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं ये ढूंढ पाई हूँ रीजन टू बी ग्रेटफुल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक एंड द प्रैक्टिस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज कंटिन्यू। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवनता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पे कि आप लोग, जिन लोगों ने शकुंतला दीदी मूवी देखी है नहीं देखी है मुझे पता नहीं। सो शी इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर, और उनका ब्रेन
वो एक कंप्यूटर को हरा दी। लोग बिलीव ही नहीं कर पाते थे कि वो ऐसा ऐसा कैलकुलेशंस करती थी जिसको करने में लोग को एक एक दो दो घंटा लग जाएगा, वो विद इन 2 मिनट्स करती थी, क्योंकि उनके पास वो ब्रेन था। क्योंकि और वो क्यों, क्योंकि वो ब्रेन के लिए हर सेकंड थैंकफुल थी, हर सेकंड। तभी ब्रेन उनको इतना मदद किया है। तो आप सोचिए, अगर आप अपने ब्रेन के लिए विच इज ह्यूमन कंप्यूटर, अब कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर आपके ब्रेन के बराबर नहीं है, उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, तो आप अगर उसके लिए धन्य होंगे, आप सोचिए तो वो आपको कितना और प्यार देगा और कितना और मदद करेगा। वैसे ही हर बॉडी पार्ट, बी इट पाव, हाथ, मुंह, आँख, कुछ भी, हर चीज के लिए धन्य होंगे। प्लीज कंटिन्यू। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, लेखिका ने हमें कैटेगरीज दिया है। अब सोचिए, वो हम लोग के लिए काम इतना इजी कर दे रही है। 2 पैराग्राफ दिए जिसमें वो इतना चीज बताइए जिसके लिए धन्य हो सकते हैं। फिर शी इज गिवन अस कैटेगरीज। ये कैटेगरीज को देख के आपको याद आ जाएगा कि आप क्या क्या चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो प्लीज, आप ये बुक के साथ ही आज 20 ब्लेसिंग लिख सकते हैं। 20 तो मैं कम बोल रही हूँ, 30। तो आप ये मत सोचिए कि 10 लिखना इज डिफिकल्ट। प्लीज, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो आपने देखिए, जो लेखिका बोल रही है, इस पे प्लीज ध्यान दीजिए। एकदम सिट स्ट्रेट एवरीवन। अगर आप रोज नियामतें गिनना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि योर डेज आर ब्राइटर। सिर्फ खुशी खुशी है, उत्साह है, अलग एंथुजियाज्म है। वाओ, आज मेरे पास ये है, वाओ मेरे पास वो है। आप खुद समझने का कोशिश करेंगे। और आप एक चीज सोचिए, आप कभी सैड, एवरीवन इज सैड, सबकी लाइफ में सैडनेस, हैप्पीनेस, सुख दुख आता रहता है, निराशा, हताश, हर चीज। बट जब आप, मतलब अब कोई सिचुएशन है, जैसे आवाज के लिए मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी चीज है कि आपको आपको कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ मिल चुका है बट वो वैसा नहीं मिला जैसे आपको मिल रहा है। पर आप सोचिए, आप इस प्रैक्टिस के कारण, इस बुक के कारण आप सोचेंगे एटलीस्ट मेरे पास वो है तो सही, वो मेरे को मिल तो रहा है। ये बुक आपको इस प्रकार मदद करेगा और धीरे धीरे करके आपको जब कुछ नहीं भी मिलेगा ना, तभी भी आप सेटिस्फाइड होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होंगे और उस सिचुएशन में भी खुश होना स्टार्ट होंगे। प्लीज कंटिन्यू। Vanita, you're on mute. सॉरी। Yeah, no जादुई issue. स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। पहले आप, हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 1: अपनी नियामतें गिनें। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो आपको क्या क्या करना है एवरीवन? अगेन एकदम कान खड़े कर लीजिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सुबह उठ के शांति में आपको ये लिखना है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन उस समय बहुत स्ट्रांग होता है। आप और फीलिंग दे पाएंगे जब आप लिखेंगे। आपको रोज लिखना है इसको,
बोलना नहीं है, लिखना है। जब आप लिख लेंगे 10 ब्लेसिंग, आपको हर ब्लेसिंग के बाद बोलना है पढ़ के जोर से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगले 27 दिन तक करना है। 27 डेज के बाद आप लोग खुद बोलेंगे, आई विल कंटिन्यू इट माई एंटायर लाइफ। प्लीज एवरीवन डू दिस एवरी सिंगल डे, यू विल सी द मैजिक। नेक्स्ट क्रमांक 2, यशस्वी प्लीज चेंज द पेज। तो आपको क्या करना है वंदिता, आप खाली पॉइंट नंबर 1 पढ़ सकती है, पॉइंट 1 और 2। जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। बस वंदिता, थैंक यू। तो आपको क्या करना है, देखिए लेखिका ने वापस बोला है डे 2 में। आपको नोटिस करेंगे वो रोज बोलेगी, कोई रीजन होगा ना क्यों हमें रोज रिमाइंड कर रही है कि आपको ये रोज कार्य करना है। वो तो निश्चिंत हो जाती, लोग मिथ्या बुद्धि है, लोग खुद कर लेंगे। देयर इज अ रीजन क्यों आपको वो बोल रही है। तो प्लीज आप इसको रोज करिए जो टास्क आपको आज दिया जा रहा है। एंड कल के लिए आपको एक पत्थर ढूंढना है जो आपके हथेली पे फिट आए, मतलब आपके फिस्ट में अब जब मुट्ठी बनाए तो वो पत्थर फिट हो जाए। इट शुड बी स्मूथ, इट शुड हैव नो एजेस। और आपको ये कल तक रेडी रखना है, कल सुबह के पहले। तो आज आपको नियामतें गिननी है और पत्थर ढूंढनी है। ओके वंदिता, थैंक यू so much for reading in Hindi. Now I would request Aryan to please take the charge. Good morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yasha, for explaining it so nicely, and thank you, Vatsal and Vandita, for reading in both the languages, English and Hindi, so patiently and nicely. So, जो आज का हम लोग का चैप्टर है, Count Your Blessings. तो what do we understand? Like, what is the importance of count your blessings? अगर हम लोग अपना blessings रोज count नहीं करेंगे, तो we'll fall into trap of negative zone. मतलब जो negative feeling zone है, उसका trap में हम लोग फंस जाएंगे। ट्रैप मतलब क्या हुआ, दलदल। तो क्या होता है अगर हम लोग नेगेटिव जोन का ट्रैप में फंस जाते हैं, सो वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स टू अस। लाइक अगर हम लोग नेगेटिव फील करेंगे तो वील अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स टुवर्ड्स अस। बहुत लोग होंगे जो लोग फील करते होंगे कि हम लोग भगवान के इतना पूजा करते हैं या फिर हार्डवर्क करते हैं, पर हम लोग की मन्नतें पूरी नहीं होती है। लाइक नहीं तो मेहनत रंग नहीं लाती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मन्नत मांगते हैं या फिर व्हेन वी वर्क हार्ड, उसका मतलब फ्लो ऑफ अट्रैक्शन हम लोग अपने तरफ कर तो देते हैं। लाइक वो जो गुड फीलिंग्स होना वो तो आ जाते हैं, पर पूजा करते ही हम लोग जो नेगेटिव बोल देते हैं, जैसे ही हम लोग कुछ गलत बोल देते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं या फिर कुछ टेंशन ले लेते हैं, वैसे ही हम लोग नेगेटिव जोन में चला जाते हैं और जो फ्लो ऑफ अट्रैक्शन है वो उसी टाइम रुक जाता है। तो अगर हम लोग को फ्लो ऑफ अट्रैक्शन जो आपका है मेंटेन करना, लाइक इफ यू वांटेड टू कंटिन्यू कि वो आपके तरफ आते रहे, तो हम लोग को सबसे पहला चीज जो करना है वो है वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। और वन मोर रीजन बिहाइंड काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, अगर हम लोग पूरा टाइम पॉजिटिव सोचेंगे ना, जैसे कि अगर वील कीप काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, तो कुछ नेगेटिव चीज हम लोग के साथ होगा भी, तो वील हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी है दैट वील इग्नोर इट। लाइक वी वोंट इवन रियलाइज कि वो हम लोग के साथ हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी हो सकता है कुछ नहीं होगा करने को, लाइक मतलब you might not have a home, you might not have a family, you might not have friends, but understand you have got free air. Like आपके पास air है। आप अब बोलेंगे हवा तो नॉर्मल चीज है, पर उससे पूछिए ना जो अभी आपका क्या बोलते हैं इधर कोविड से अफेक्टेड है या फिर एनी पर्सन हु हैज गॉट एस्थमा या जिसपे ऑक्सीजन सिलेंडर अभी चढ़ा हुआ है, आज दैट पर्सन उसके लिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है। दैट पर्सन हैज टू पे फॉर एवरी मिनट। वो पर्सन नॉर्मली हवा भी नहीं ले सकता। लाइक he or she requires a machine to breathe। मतलब आप सोचिए ये कितना ज्यादा अजीब है। मतलब इसके बाद आपका guys we'll take the questions after the session, we'll give you chance to ask your questions। हाँ, और आप सोचिए जैसे कि आपका दादू या दादी के टाइम, मतलब ask your grandparents कि when they were young वो लोग के टाइम में पानी फ्री होता था, but as people stopped being grateful for water, now we have to pay for water। आप सोच सकते हैं 1 लीटर बॉटल पानी के लिए we have to pay 20 rupees। मतलब हम लोग का अर्थ में पानी ही पानी है। लाइक मोस्टली इट्स वाटर ओनली एंड स्टिल वी हैव टू पे फॉर ड्रिंकिंग वाटर। मतलब वाई? उसके बाद आपका जब हम लोग का कोविड क्या बोलते हैं, और रीजन
वाई हम लोग को टेंशन होता है, ये सब होता है, द ओनली रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि हम लोग ब्लेसिंग काउंट नहीं किया। आप ये गार्ड बांध दीजिए, मतलब एक होता है ना, लाइक राइट इट समवेयर दैट अभी हम लोग को टेंशन हो रहा है कोई चीज का, या फिर वी आर गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ बिकॉज वी हैवंट काउंटेड आवर ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग दैट मैटर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अपना पढ़ाई को लेकर टेंशन हो रहा है, इट इज बिकॉज यू हैवंट काउंटेड योर ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग योर studies. Like you haven't been grateful that you're getting an opportunity to study, or you're being able to sit down for 1 hour 2 hours 3 hours जितना भी there to study. That's why आपको वो टेंशन हो रहा है। उसके बाद जैसे कि मुझे याद, मतलब जब मार्च के टाइम में व्हेन इंडिया में कोविड आया था, लाइक व्हेन पीपल इन इंडिया गॉट टू नो अबाउट कोविड एंड ऑल, सो पीपल स्टार्टेड abusing China, like not only abusing China but China के साथ ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। Why? Like ये चीज में okay, China might have done wrong, might not have done wrong. I don't want to comment anything about it. पर आपको क्यों कमेंट करना? Like you can't do anything about it. मतलब आप जाके चाइना को क्या, आप जो चाइना का प्रेसिडेंट, आप उसको जाके कुछ कर सकते हो? जाके क्या झापड़ मार सकते हो? कुछ कर सकते हो? Like can you punish it? आप ये जब बोलते हो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये अपने तरफ अट्रैक्ट करो। आपका बोलने से वर्ल्ड को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, बस आपको इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं रतन टाटा, जैसे कि ही इज माय इंस्पिरेशन, लाइक आई एम लाइक हम उसको आई लुक अप टू हिम, लाइक आई डोंट नो बहुत ज्यादा। सो ही आल्सो हैड अ कोट, an iron can only be destroyed by its own rust, just like a human can destroy himself or herself by his own mindset. मतलब आपको समझना होगा, लाइक आप जो भी बोल रहे हो, वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका and you all have to understand this is no coincidence, पूरा वर्ल्ड अभी सफर कर रहा है। so many people right now, आपका जॉब्स चला गया, so many people are having health issues, so many people, आपका एक ही साथ फ्लड्स भी आ रही है, मतलब आपका एनवायरनमेंट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू पीपल, लाइक घर चला गया, सब चला गया। इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। इतना सारा प्रॉब्लम्स एक बार में क्यों आ रहे? बिकॉज it's been a long time since we humans have not at all paid gratitude. Like आपको क्या लगता है जो लोग का जॉब्स गया, वो लोग when they were doing job, like when they were in their office and all, they used to pay gratitude, like they used to pay gratitude कि आज मेरे को जॉब मिले। like कितना लोगों के पास जॉब है, thank you, I have a job, I have an earning, I can do whatever I want to do। like ये होता है, मतलब it's not a coincidence, you all have to understand। और कितना सारा लोग you have to understand कि घूम रहे अभी भी, पर they are not getting infected with it, like neither financially they are affected nor health wise। Why? Because they have knowingly or unknowingly paid gratitude about it, like they have paid gratitude regarding their money, health, relation। कहीं ना कहीं तो कर ही देते हैं वो लोग को, खुद को नहीं पता होता they are paying gratitude right now। उसके बाद Yasha, can you open feeling start for me? We have designed, yes, oh she has opened it, okay। तो आपका यहाँ पे आपको समझना होगा जो बैड फीलिंग्स और गुड फीलिंग्स, मतलब ये जो ऊपर, या आई कैन सी इट, तो जो ऊपर वाली येलो वाली एरिया है, दैट इज गुड फीलिंग्स, दिस आर थिंग्स दैट वी वांट टू अट्रैक्ट इन आवर लाइफ। और जो नीचे वाला, मतलब लाइन के नीचे वाले एरिया, द ब्लैक साइड, दैट इज बैड फीलिंग्स, द थिंग्स दैट वी डोंट वांट टू अट्रैक्ट इन लाइफ। सो जो सबसे ज्यादा reason like why we attract things that we don't want to attract in life is worry and fear, चिंता और डर। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये इसके वजह से आप सारा जो चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करनी आप कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल देता है, फॉर एग्जांपल अ मदर एंड अ सन, ठीक है, आपका बच्चा सोचिए जा रहे एग्जाम देने के लिए, आप उसको सीरी में जाते हो, when he's going you give him a hug, you give him a kiss and you wish that person, you wish your child all the best of luck, you're gonna do well। अब वहीं पे आप रूम में जाके आपका माथा में तो चलता है पढ़ा तो है नहीं, आपका क्या बोलते हैं बस पास हो जाए आज, मतलब पॉजिटिव जोन डाल दिए, आप अट्रैक्ट गुड मार्क्स उसके तरफ कर दिए when you gave your child blessings। पर आप घर, आप जैसे ही अपने रूम में गए वैसे ही आप नेगेटिव जोन, मतलब आपको जो अट्रैक्शन आपका उसका बच्चे का गुड मार्क्स आ सकता था, पर you're the reason कि उसका मार्क्स नहीं आ रहा है। लाइक I have heard many mothers talking कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ घूमता है वहां घूमता है पूरा दिन घर के बाहर। आपका बच्चा बाहर घूम रहा है, नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आप इधर उधर जाके बोल रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग इट।
आप वही बोलिए ना जो आपको एक्चुअली चाहिए अपना बच्चा लोग से, लाइक व्हाट यू वांट योर सन और डॉटर टू बी, कि नहीं वो पढ़ाई करता है दिन में, चलिए नहीं पढ़ता है, आप एक बार ट्राई कीजिए बोलने का, क्या पता अट्रैक्ट हो जाए। इतना टाइम से तो आप कर रहे हैं ना गलत चीज, एक बार हम लोग जो बोल रहे हैं वो करके देख लीजिए, क्या पता हो जाए। ऐसे भी तो कुछ हो नहीं रहा आपका। उसके बाद आपका देन आपका जो गुड फीलिंग स्टार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज लव एंड ग्रैटिट्यूड। तो आपका लव एंड लव इज वेरी डिफिकल्ट स्टेज, लाइक we Sakshi, Yasha and I practice gratitude for like 60-65 days, and then we could enter the zone of love. Love is a very difficult and different zone altogether. ये जो magic book है that is focused on the gratitude side. तो पहले हम लोग अपना gratitude improve करते हैं, and then होपफुली नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट जब हो जाएगा तो हम लोग आपको लव के लिए भी ट्राई कर देंगे कराना। सो लेट्स फोकस अभी ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को समझना होगा सेटिस्फैक्शन, होप, जॉयफुल। तो जब भी जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आप किसी को फोन किए, इट माइट बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, योर एनीवन, आप किसी को कॉल किया और वो सोचे उस टाइम फोन नहीं उठा पाया, आपको क्या, आपका माथा में सबसे पहले क्या आता है? आप अनॉय हो जाते हो, आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, या फिर आप उसको गुस्सा हो जाते हो उससे कि कैसे नहीं उठा सकते मेरा फोन, कैसे नहीं उठा सकते। पर वहीं पे आप सोचेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट पर्सन पिक्स अप माय कॉल, यू कैन हैव अ होप कि उठा लेगा फोन। आप जब होप रखोगे ना तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ कि हाँ वो पर्सन उठाएगा, वो होप अट्रैक्ट हो रहा है। व्हेन यू आर गेटिंग अनॉयड, व्हेन यू आर गेटिंग एंगर, लाइक जब आप गुस्सा हो रहे हो, जब आप क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज कर रहे हो, सो यू आर बेसिकली अट्रैक्टिंग criticism, boredom, your annoyance, your anger in the relationship with that person. आप कितना बार रियलाइज किए होगे कि आप वो पर्सन को क्रिटिसाइज जब करते हैं, आपका रिलेशनशिप वो पर्सन के साथ एक्चुअली अफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो क्या बोलते हैं उसके बाद वन मोर, देन आपका पैशन एंड हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ये तीनों चीज। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट, आप पढ़ाई का वाइज में सोचिएगा, एंड इफ यू आर पर्सन हु इज इनटू बिजनेस और जॉब, यू थिंक लाइक दैट। तो आप जब अपना जॉब या पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पैशन होना चाहिए, लाइक यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर स्टडी और योर जॉब की, हाँ हम पैशन के साथ कर रहे हैं। यू शुड बी हैप्पी ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। आप जो पढ़ाई कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग डाउन टू डू मैथ्स, यू शुड बी हैप्पी आई एम डूइंग मैथ्स। इफ यू आर डूइंग अ जॉब, यू शुड बी हैप्पी अबाउट योर जॉब। अगर आप हैप्पी नहीं है, कोई और को जॉब मिल जाएगा, बिग डील। यू शुड बी एक्साइटेड, मतलब जैसे कल भी समझा था, व्हेन यू वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग, you should be excited, what a beautiful day. The day has got a lot of things for you, knowledge, then entertainment, fun, a lot of things. उसके बाद आपका so this is excite, but वहीं पे we see that लोग जॉब और आपका जब पढ़ाई करते हैं, they get bored while doing their studies, or they get annoyed, they criticize जब वो लोग जॉब कर रहे होते हैं। We have to understand, जब आप सोचिए जॉब कर रहे हैं, many people who are doing a job right now, आप सोचिए कि अचानक से आके आपके बॉस आपको सबके सामने क्यों डांट देते हैं। इट माइट भी तो आपका गलती नहीं होगा, और आपका गलती इतना छोटा होगा पर उसका दरकार नहीं, मतलब वो जो जिस हिसाब से झाड़ते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज यू सिट डाउन विथ योर कलीग्स एंड क्रिटिसाइज अबाउट योर बॉस। व्हाई डू, मतलब जो आदमी आपको पे कर रहा है, आपका अर्निंग करा रहा है, आप उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मे बी ही इज वेरी एरोगेंट इन नेचर, बट why do you need to criticize? Just talk about yourself, your career, your passion to the people. Like this is very important. आप जो भी चीज कर रहे हैं, your relationship, your health, everything is, ये सब चीज आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। So जो फर्स्ट स्टेज है, आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो आप कर रहे हो, फिर आपका होप जो आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू, देन जॉयफुल, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस एंड पैशन कम्स ऑल टुगेदर। व्हेन आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ये सब चीज होना चाहिए, लाइक यू शुड फील जॉयफुल, यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट, वो हैप्पीनेस अंदर से वो जो खुशी होता है वो, and then when you feel all this, you should be gratitude, you should pay gratitude to them, like thank you, I was happy about it, thank you. This is really important. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस लाइक लास्ट 1.5 years, एंड आई रियलाइज्ड कि क्या बोलते हैं पीपल, when two people don't have to talk but they have to talk something, like ऑफिस में बात करने को ही होता है, तो मार्केट खराब चल रहा है भाई,
मतलब लोग का बिजनेस मार्केट पे डिपेंड भी नहीं करता। आई नो पीपल जिनका लाइक दे डोंट केयर, लाइक जो लोग का आपका जो ट्रेडिंग रेडिंग होता है, मतलब आपका जो सामान का ट्रेडिंग होता है, तो उस बेसिस पे मार्केट का फर्क भी नहीं पड़ता। देयर बिजनेसेस डोंट इवन गेट अफेक्टेड बाय मार्केट, बट दे नीड टू पास अ कमेंट कि मार्केट आपका क्या बोलता है खराब है। क्यों अपना बिजनेस के बारे में बोलो ना कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। एज सून एज यू से मार्केट खराब चल रहा है, आपका मार्केट खराब हो जाता है वहीं पे। as soon as you say खराब, वैसे ही आपका मार्केट खराब हो जाता है। So it is very important to talk about yourself and to know what you are speaking. ठीक है, महात्मा गांधी, I hope everyone knows who is महात्मा गांधी. He is the father of nation. So क्या बोलते हैं, आप सोचिए अ पर्सन जो जिसकी आइडियोलॉजी सिंगल हैंडेडली हम लोग का कंट्री, लाइक his idea I'm talking about, not the person right now, I'm talking about the idea of that person. बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। क्यों? मतलब these people when they talk they always talk sense, मतलब खाली knowledgeable बात। you have to understand, बुरा मत बोलो। हम लोग वही बोलेंगे जो हम लोग सोचते हैं, तो और जो हम लोग अगर खराब सोचेंगे तो हम लोग खराब चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इफ वी स्टॉप सेइंग शिट, लाइक इफ वी स्टॉप सेइंग बैड फीलिंग्स का चीज, तो ऑटोमेटिकली आप ब्रेन गेट्स रीवायर्ड, वी वोंट इवन थिंक, लाइक नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे भी नहीं। बुरा मत देखो, हम लोग जो देखते हैं ब्रेन अपने आप वो सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा मर्डर मूवीज देख रहे हैं, या फिर if you're watching very vulgar movies and all, your brain starts thinking like that. You start attracting it towards yourself. You start attracting murders and all around you. बहुत एंड देन बुरा मत सुनो। आप जो सोचते हैं, ठीक है, बहुत लोग होते बोलते हैं एक कान से सुनता है दूसरा कान से निकालता है, पर आपको लगता है सुन के निकाला, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको याद ही रह जाता है आप जो भी सुनते, लाइक इट दैट सबकॉन्शियस माइंड नोस एवरीथिंग जो आप पूरा दिन करते हो। सो प्लीज इफ समवन टॉकिंग आल्सो नेगेटिव, आप वहां से निकल जाइए या उसको बोल दीजिए एटलीस्ट डोंट स्पीक नेगेटिव टूवर्ड्स मी। आपको समझ होगा दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ इट। आप दूसरा को खुश करने के चक्कर में अपने तरफ नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका 1 सेकंड, उसके बाद हाँ, हम लोग का एंसेस्टर्स, लाइक हम लोग की जो पूर्वज है, ये सब लोग सुने होंगे दीवारों के कान होते हैं। दिस इज अ रिडल, लाइक दीवारों के जो कान होते हैं इज अ पहेली, लाइक दीवारों के सच्ची में थोड़ी कान होते हैं। हम लोग को क्या लगता है दीवार के पीछे कोई आदमी एक्चुअली वेट कर रहा है हम लोग का सुनने का? कोई वेट नहीं करता, हम लोग को पता है कोई नहीं होता। वॉल्स हम लोग का फ्रीक्वेंसी जान लेता है, जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी टॉक, व्हेन वी थिंक, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वॉल ऑब्जर्व कर लेता है, और जब वो ऑब्जर्व करता है इट कीप्स अट्रैक्टिंग दैट फीलिंग्स टुवर्ड्स अस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम लोग के पूर्वज क्या बोले, लाइक दे हैव लेफ्ट मेनी रिडल्स जो हम लोग इस बार सॉल्व करने वाले पूरे 28 डेज में। वी हैव टू अंडरस्टैंड जब हम लोग बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, इट्स अ रूल फॉर नेक्स्ट 28 days we are not going to use coronavirus. I used it to explain it to you all. We are not going to say problems from our mouth. We are not going to use sad. We are not going to use cry or bored, annoyance, criticism, blame, anger, revenge. Any feelings हम लोग कुछ भी use नहीं करेंगे. If we have actually some problem, like if we are actually suffering through the thing that is going around in the world, we'll use challenge, the challenge given by the world to us. ठीक है, challenge ही तो है, कर लेंगे ओवरकम, बिग डील। जब हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं तो प्रॉब्लम हम लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चैलेंज तो हम लोग के पास आएगा। इफ वी यूज द वर्ड चैलेंज, वी आर अट्रैक्टिंग चैलेंज आल्सो, देन वी विल आल्सो यूज कि इसका सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन भी हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, हमको आई अंडरस्टैंड, लाइक वी आर इन अ इंडियन फैमिली और इंडियन हाउस होल्ड, पीपल आपका अराउंड, और वी हैव गॉट फ्रेंड्स ग्रुप आल्सो जो आपको नेगेटिव थिंग्स बोलती रहती है इधर उधर बार बार, बट इट्स ऑन यू। Get yourself locked down for 28 days, 20 days, और you know what's best for you, कि आपको कैसे इग्नोर करना है। आपको जब इग्नोर करना होता है आप इग्नोर कर सकते हो, no big deal. This is your life, your decision. We can only guide you. हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना आप ही को है। हम like I personally try to ignore as much as possible. I know it is very difficult, but I try to ignore as much as possible जितना negative feelings है, क्योंकि now whenever I think of something negative also ना, हमेशा माथा में यही आता है, is it very important for me to say, क्योंकि अगर ये हम avoid किया बोलना तो I'll stop this attraction, मतलब जो negative चीज attract करना है वो अपने तरफ बंद कर देगा। और that's why बोलने से पहले सोचिए,
It is very important. उसके बाद and thank you guys for listening it. And जो आपका कल का assignment के लिए आपको rock खोजने के लिए बोला हुआ है, so guys I can show you all my rock. 1 second. I better not focus. So it can be any rock. आप अपना घर के नीचे, जैसे कि in this time many people can't leave their house, so आपका घर के नीचे आप जाइएगा, कोई भी पत्थर खोजिएगा जिससे आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है, like you should feel good about that rock, क्योंकि that rock के ऊपर आप अपना पूरा positiveness भरेंगे. So it is very important कि you feel good about the rock. It can be dirty, ऊपर आके साफ कर दीजिएगा, big deal, कोई बड़ा बात नहीं है अगर dirty भी है तो. और thank you guys. Now we are open for questions and your sharings. If you have any sharings like about your dreams that you wrote, or if you have any problems with the language, before that we'll have a शुक्राना. Okay, yeah, 1 second guys. तो सब लोग आंख बंद कर, सब लोग अपना हाथ जोड़ के आंख बंद कर लीजिए. Thank you God, I woke up early and fresh. Thank you water to keep me hydrated and clean. Thank you air for helping me to breathe fresh air. Thank you parents for loving me, taking care of me, supporting me and fulfilling all my demands. Thank you friends for loving me, entertaining me, always taking care of me. Thank you mind for understanding and remembering things. Thank you body for working efficiently and to be in perfect shape. Thank you Sakshi and Yasha for explaining this chapter so beautifully. Thank you to all the participants who came and listened to us so patiently and are taking small steps to make their life magical. Thank you God for my family's safety, good health and prosperity. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Aryan, for explaining Thank you, us Aryan. so beautifully. Thank you, the readers. Thank you to all the readers. If anyone has any questions, we are open to questions now. कुछ भी डाउट हो, कल जो किए कैसा लगा, अब कुछ करने. Guys, before your questions, एक और चीज, yesterday Bai's question session very important. I'll explain it to you. Yes. कल हम क्या बोलते हैं, I missed out a very important point, and thank you Vandita for pointing it out. So she asked me, am I allowed to write negative words in my dream? Like negative words, like she doesn't want to, her dream is not negative, like her dream might be कि हम गुस्सा नहीं हो, like I don't want to be angry. अगर बहुत angry tendency person and your dream can be like I don't want to get angry. So you're not supposed to write ki I am not angry. You're supposed to write I am calm and a patient person. And why do you want to be calm and patient person? So that you can handle situations more nicely and understand the other person's point of view. So जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंशन, आपको टेंशन लेने का बहुत, जैसे ओल्ड पीपल का टेंडेंसीज होता है टू टेक अ लॉट ऑफ टेंशन अबाउट देयर वर्क, देयर फैमिली, एवरीथिंग. सो आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? आई एम अ रिलैक्स पर्सन, आई अंडरस्टैंड एवरी, मतलब आपका जो भी ड्रीम है, जैसे कि यूज दी ऑपोजिट वर्ड्स. आपका टेंशन का ऑपोजिट रिलैक्स, एंगर का ऑपोजिट काम, यूज दोज वर्ड्स. ओके, एंड एनीवन इफ दे हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज असाइनमेंट, उसके बाद क्या बोलते हैं, और if you have any questions regarding yesterday's assignment about dream, you all can ask us. Thank you. We all will send you a picture of the magic rock in the group. So if you have any questions regarding magic rock, you can ask on the group also. Pavanji, you raise your hand if you have any questions. Yeah, I wanted to ask, can we use a glass rock, like a glass pebble or something like that? No. Please, You have to use only rock. We don't want any pebbles. हाँ, जो आप जैसे विक्टोरिया मेमोरियल में बहुत रॉक दिखते हैं ना, वैसा टाइप का होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, एंड इट शुड फिल योर, मतलब आपकी मुट्ठी में आ जाना चाहिए. Okay. प्लीज उसको ध्यान दें. Okay, thanks. It can be something like this, if you can see, all of you. This is a rock. And guys, when you sit down to write your blessings today, you might not get 10 blessings. जैसे कि when I started, I remember my first day, I only wrote 7 blessings. मतलब मैं दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज के लिए I should be grateful. Today, I write 2 pages when I wake up in the morning. 2 pages, 2 long copy pages I write. That is almost 40 to 50 blessings minimum I write every day. So it is very important. This is a practice that you develop every day. And this is not कि हम 5 days, 6 days से कर रहे हैं. This is since 70 days we are doing.
और हम लोग आपको पीडीएफ भेज देंगे। जिनके पास बुक नहीं है तो आप बुक का वो जो पैराग्राफ जिसमें बताया गया कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। Anyone, any other question? One more thing, from today, all of us just need to count our blessings and not negative things, because it's on you if Yes. you want your blessings to increase or if you want your blessings to decrease. So yes, please remember that. Thank you. 1 second, Dhruv had a question, I guess. Dhruv, can you unmute and ask, because I can't find your question. Sakshi, can you find this question? No, even I can't. Dhruv, can you unmute yourself if possible? Or maybe write it again in the chat box. Okay, what? 1 second. Okay, it's okay. Okay, He what if might be people coming around back. you are talking negatively in a way, you'll get influenced, right? So 1 second. So if someone's talking negatively around you, I've already explained it to you all. अगर कोई आपके साथ, it's on you. It's your decision to stay with that person or not. You decide your surroundings. You're the person who decide your. If we have told you, if we have explained you that positiveness is important for your life. If you actually want to do something in your life, you have to be around with positive people. Like people who get worried easily, ये सब, you can relax them. But for people जो आपको negative comments देते हैं, for next 20 days stay away. After that आप देख लीजिएगा. For next 20 days try to avoid them. But पहले वो लोग को समझाइएगा. Obviously, first thing is to make them understand, and then you know what's best for you. हो सकता है कि आपका भाई हो जो बहुत नेगेटिव बात करता हो, जैसे मेरा छोटा भाई है, मैं 2 महीने से मैजिक कर रही हूँ, वो नहीं, कुछ छोटा है, नहीं समझ पा रहा है, ऐसा छोटा नहीं है, 10 में है, बट ठीक है, नहीं समझ रहा, बट कभी भी जब वो कुछ बोलता है ना, आई से ध्रुव तुमको जो ठीक लगे करो, मेरे अनुसार यू शुड बी ग्रेटफुल एट दिस मोमेंट। जब आप कॉन्स्टेंटली किसी को कुछ बोलते रहते हैं ना, उसको लगेगा क्यों बोल रही है साक्षी दीदी, क्या है, कुछ उसके मन में आएगा, तो बार बार बोलते रहिए। वो इरिटेट हो, आपको तो काम रहना है, आपको अच्छे फीलिंग जोन में रहना है, गुड फीलिंग, तो आप काम रहिए। आपके बेस्ट फ्रेंड, भाई, हो सकता है आपकी मम्मा इस चीज में बिलीव नहीं करते हो, बट आप करें। आई एम श्योर अपने बच्चों को देख के हर माँ धीरे धीरे बिलीव करने लग जाएगी। Yes, I hope please go. So I hope, Dhruv, that your question is like Dhruv, you if got you the have answer. got your Yes. answer, please write yes. And if you still have a Yes. doubt, you can ask again and again. We are here to solve your doubts only. One more thing, we'll share the feelings chart in the group. All of you, please take out a printout of the feelings chart and keep it somewhere where it is visible. तो अगर आप below the line भी चले जाते हैं तो आप तुरंत vigilant हो जाएंगे and you are like, no, I have to be above the line. So it is Like, your choice. For example, we Sakshi, Yasha and I made our phone's wallpaper the feelings chart. Like हम लोग का phone का wallpaper Yeah. is the feelings chart. हम लोग का Because जब फोन खोलते हैं हम लोग आप को कभी दिखता है। गुस्सा भी किसी से होते हो तो सबसे पहला चीज आप फोन खोल के अपना टाइम पास या फिर कुछ करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप ये फीलिंग जोन में फटाफट ऊपर चले जाना है. Like this can be your ideology. So we will share you आपका आज का assignments and we'll also share the feeling charts with you. Any other question, anyone? Pavanji, you again raised your hand, or whether you forgot to lower your hand. Are you there? No, my question is already answered. It was earlier. Oh, acha, you didn't lower your hand, so I thought, okay, no. Thanks. Anyone, any other question, or else we just end the session for today. And from tomorrow, please join at 7:35 as we'll start the session by 7:45. Yes, sharp at 7:45 we start the reading. Many of you all joined at 8. जीवन में कुछ चाहिए तो मेहनत तो करना ही है, तो 15 मिनट जल्दी तो आप लोग उठ ही सकते हैं, मैं Guys, sure all हूँ। can So please. unmute and wait. Udita, so you do not have to maintain distance. If you change yourself, if you become positive, that person will automatically see you and become positive, because you have to make the change in order to change the world. So I hope that answers your आपको question. बोल रहे थे that's for next 15 days we are just telling you so that अभी हम लोग को habit नहीं है positive zone का. So first let's develop the habit खुद इतना positive हो जाए कि we can change other people too. That's why the whole idea of just being alone right now for 10-15 days in the positive mindset is कि इतना positive and आपका relationships also वो जो person है we'll explain you कि सामने वाला को कैसे positive करना है. We have the chapters coming. Any other question?
Thank you for your question, Udita. Thank you, Thank you for Dhruv, your question, and Udita. thank you, Thank you, Pawan everyone. ji. Yes, thank you, Dhruv. Thank you, Pawan ji. Thank you, So, everyone. thank you, everyone. We're ending the session for today. Hope to see you tomorrow at If 7:35. you all Have a nice day, okay, everyone. guys, we'll wait for 2 minutes more, and if you all don't have any questions, then we'll end the session. Thank you so much. Thank you. One Yasha, one, and also share that because it's easier to fit the screen. We can't hear you, Mansi. The wallpaper that you all have, the one which Sakshi is using right now, the power one, I think you all should share that because it fits the screen better than this one. The Okay, feeling. we'll share that. Okay, Thank you. yeah, thank you. Thank you. Thank you for the lovely session, Sakshi, Aryan, and Yashasvi. Thank you so Thank much. you, Thank thank you. you so It was much. lovely. Aryan, you give really amazing examples. Excellent. Thank you. Guys, Thank you. stop you. Thank you. Okay, so guys, we're ending the session. Thank you for attending. See you tomorrow, and please do your assignments. Thank you, thank you, thank you.